that is nature, purpose and the scope of business. It is organization of commerce and management chapter number 1, or it may be said as a business studies chapter number 1 for the CBSE students. Yes students, I will just showing you the video. If you like my video, do like, share and subscribe my channel for getting the regular update. Okay students, so here we go with our video, which is now. The first thing which we are going to study is economic activity. What do you mean by economic activity students? Economic activity कहता है, economic activities are those activities which are undertaken by the people with the objective of economic benefit और monetary return. तो मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं कि वो सब तरह की एक्टिविटीज जहाँ पर जो भी बंदा वो एक्टिविटी कर रहा है, उसका मेन रीजन क्या है कि मैं इस एक्टिविटी के थ्रू कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट या कोई ना कोई मॉनेटरी रिटर्न कमाना चाहता हूँ। जहाँ पे आपका पर्पस इकोनॉमिक बेनिफिट या मॉनेटरी रिटर्न कमाने का है, उन सब एक्टिविटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आप देख सकते हो एग्जांपल, अ मैनेजर वर्क इन एन ऑफिस is an economic activity. From this image, it is very much clear that this person is selling the goods to his clients. So this person is doing what? This person is doing an economic activity. And second one here, the money is being paid for this. So any type of activity which is undertaken with the objective of economic benefit or monetary return, this is known as economic activity. Now students, economic activity is clear. Now what do you mean by non-economic activity? Non-economic activity, so it says as, non-economic activities are those activities which are undertaken by the people to get the psychological satisfaction, okay, to get the psychological satisfaction or as a hobby. अभी मैं सिंपल भाषा में बात करूँ, ये एंट्री बोल रहे हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी उन सब एक्टिविटीज को बोला जाता है जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, मतलब हमारे मन की इच्छा, हमें खुशी होती है, इसलिए हम वाली एक्टिविटी करते हैं। और ऐसा हॉबी, मैं ये चीज करना चाहता हूँ, मैं इसके अंदर बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं दूसरे लोगों की हेल्प करता हूँ, ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ओके, सो इसलिए क्या है, हियर द ऑब्जेक्टिव इज नाइदर इकोनॉमिक बेनिफिट और द मॉनेटरी रिटर्न। यहाँ पर कमाने का कोई पर्पस नहीं, यहाँ पे अर्न करने का कोई पर्पस नहीं है। यहाँ पे मेन पर्पस क्या है, दैट आई एम हेल्पिंग द अदर पीपल सो दैट कि मुझे खुशी मिल सके और मैं उन लोग की हेल्प करूं। यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करने का कोई रीजन नहीं होता। आप एग्जांपल देखिए, हाउसवाइफ कुक्स फूड फॉर हर फैमिली। ओके, मम्मी आपके घर पर सब लोगों के लिए खाना बनाती है। गार्डनिंग एज अ हॉबी, तो गार्डनिंग आप लोग की हॉबी है। मुझे एज एन फ्लावर्स ये सब कुछ ग्रो करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। प्लेइंग फुटबॉल, मुझे खेलना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ऑल दिस एक्टिविटीज आर डन not with the purpose of earning a profit. These are done out of your satisfaction level. These are known as non-economic activity. So here is the image. So here you can see in this page, okay, the image which is the person is helping the grandmother for crossing the road. I am helping the dogs. Okay, I am growing trees. I am just being with my son or family members. All these things are your non-economic activity. And second image, you can see here that I am not having any interest in the money terms or any monetary aspect. I am just interested in helping the others because to get the inner satisfaction. So this is your non-economic activity. So moving towards the next you can see, so we have done the economic activity. Here the person who is working for the hotel is an economic activity. On the second person is your mother who is cooking for your family, is a non-economic activity. So here we will learn the difference between these two. So here we go. This is the difference between the economic activity and your non-economic activities. So here are the difference. You can see students, the point of difference, that is the bases are given. Economic activity on one side and non-economic activity on the other side is also given. Just see. First, your base, the point of difference is objective. So we have done economic activity, the motive is to get economic benefit. Whereas non-economic activity, motive is of social service, that is helping the others.
helping the human beings, helping the society, but not with the purpose of earning any profit. इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रॉफिट कमाने के पर्पस से होती है, हमारा वही ऑब्जेक्टिव होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हमारा पर्पस अर्न करने का एकदम भी नहीं होता है स्टूडेंट्स। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन इज द प्रॉफिट। इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपका सबसे पहला एक्सपेक्टेशन क्या होगा? मुझे प्रॉफिट कमाना है। अगर कोई बंदा किसी बिजनेस में वर्क कर रहा है तो कहेगा मुझे सैलरी चाहिए। कोई किसी को अपनी सर्विस दे रहा है तो वो फीस मांगता है। एंड अगर किसी ने कोई कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ मांगता है। तो ये सब तरह के एक्सपेक्टेशन होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। Whereas non-economic activity, expectation is to service to country, social service। यहाँ पर हमें कमाना नहीं है, मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। All these things is your non-economic activity. Types. So types के अंदर economic activity there are mainly 3 types of economic activity, which is your business, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके स्टूडेंट्स, इन सब के बारे में हम आगे स्टडी भी करने वाले हैं। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आपका सोशल पर्पस होता है। सोशल पर्पस होता है तो यहाँ पे हमारा कोई रीजन नहीं होता बिजनेस करने का। मेन हम यहाँ पे सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। यहाँ पे कोई भी तरह के टाइप्स भी नहीं होते। सेटिस्फेक्शन कोई भी लेवल तक जा सकता है। देयर आर नो टाइप्स फॉर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट डिफरेंस, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। Now, when we are doing economic activity, that is a activity of earning a profit, then there is always some risk and return. More will be the risk, more will be the gain. So, अगर आप लोग को प्रॉफिट कमाना है तो रिस्क कंपलसरी होगा ही होगा। Whereas non-economic activity, यहाँ पे तो हमारा प्रॉफिट कमाने का कोई पर्पस नहीं है। जब आपका प्रॉफिट कमाने का पर्पस नहीं है तो उस एक्टिविटी में आपको कोई भी तरह का रिस्क और अनसर्टेनिटी कभी भी हैंडल नहीं करना पड़ेगा। So there is no risk and uncertainty. It's non-economic activity. Okay. So moving towards the next slide. The next question here is, what are the various types of economic activity? So based on this image, I am going to share you the first activity which we are going to do is your business. Second thing which we are going to do is your profession, and the third activity which we are going to do is our employment. So these are the 3 types of economic activity which we are going to study. Okay, so moving towards the first economic activity. Yes students, it's the first activity is your business. So have a big round of applause for this topic. Now what do you mean by business? First, the term business is derived from the English word busy. Okay, from where this business is derived? This word is derived from English word busy, which means to remain active or to be actively continuously. Okay, तो इसका मतलब क्या होता है? हम लोग को इस एक्टिविटी के अंदर एक्टिव रहना है और मुझे इसके अंदर पूरे टाइम वर्क करते रहना है। आप देखते होंगे स्टूडेंट्स, बहुत से आप लोग के एज एन बिजनेसमैन जो कोई भी तरह के बड़े बड़े लोग हैं, हर समय वो बिजी रहते हैं। अगर हम उनको कहते हैं क्या कर रहे हो, बस अभी मैं बिजी हूँ, तो बिजी क्या चीज के अंदर है? कोई काम करने में ही बिजी तो है। तो काम करने में बिजी है मतलब वो कोई बिजनेस कर रहा है, इसलिए वो चीज में बिजी है। इसलिए बिजनेस आपका वर्ड कहाँ से आया है? इट्स फ्रॉम इंग्लिश वर्ड विच मीन्स बिजी। ओके, विच मीन्स टू रिमेन एक्टिव और टू बी एक्टिव कंटिन्यूअसली। एक तो एक्टिव रहना और एक्टिव कंटिन्यूअसली रहना। ओके, बिजनेस इज कैरिड आउट विद द मोटिव ऑफ गेटिंग प्रॉफिट एंड वेल्थ। तो बिजनेस करने का मेन पर्पस क्या है? प्रॉफिट और वेल्थ कमाने का, और कोई रीजन से बिजनेस नहीं किया जाता है। अगर आपके कोई 2 फ्रेंड्स हैं, वो जाकर आप लोगों के एज एन जो गरीब लोग हैं उन लोग को एज एन चैरिटी फॉर्म में कुछ भी देकर आ जाए और फिर वो आके कहे कि आज हम दोनों ने तो बहुत अच्छा बिजनेस किया, हम लोगों ने फ्री में लोगों को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड किया, तो ये स्टूडेंट्स दिस इज नॉट अ बिजनेस। बिकॉज जो भी तरह का बिजनेस किया जाएगा उसके पीछे मेन एम आपका प्रॉफिट अर्न करने का ही होगा। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाएगा इसको, बिकॉज जो एक्टिविटी आपके सिर्फ सेटिस्फेक्शन के हिसाब से किया जाता है, दैट इज योर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट अगर वो बिजनेस आप रेगुलरली कर रहे हो किसी और के लिए, then that is known as a business. Okay, that is known as economic activity. So here is the second definition also, or we can also use business means any legal economic activity with the motive of profit.
तो स्टूडेंट्स बेटर आप जब एग्जाम के अंदर डेफिनेशन लिखते हो तो दोनों डेफिनेशन आप एग्जाम के अंदर लिखिए, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सेकेंड डेफिनेशन भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है जो कि बोल रही है बिजनेस मीन्स एनी लीगल इकोनॉमी एक्टिविटी। स्टूडेंट्स लीगल मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर कोई इलीगल चीज इन्वॉल्व ना हो, वो एक्टिविटी जिस एक्टिविटी को आपने लीगल फॉर्म के अंदर किया हो और उसको काम करने के पीछे आपका मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करने का। सो बिजनेस मीन्स एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। ओके, लीगल होना जरूरी है, इलीगल होगा तो आपको पुलिस वाले लेकर चले जाएंगे, आपके ऊपर केस भी हो सकता है। ड्रग्स का बिजनेस करते हो दैट इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज इलीगल। और इलीगल है तो अपना कोई बिजनेस ही नहीं है हमारा। So moving towards these images, this is the business. Okay, the game which we used to play when we were small, that is all things were business. We used to purchase houses, we used to purchase the hotels. ये सब तरह की चीजें बिजनेस के अंदर है। और सेकंड के अंदर डूइंग बिजनेस, कोई भी तरह का काम अगर आप कर रहे हो जिसका काम करने का मेन रीजन प्रॉफिट अर्न करने का है, मतलब आप लोग बिजनेस कर रहे हो। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज योर characteristics of the business. So characteristics of the business we are going to study. The first characteristics here on the screen is the objective of profit. So first students characteristics of business is that we have learned the definition of business which is done with the purpose of earning a profit. Okay, so हमारा पहला characteristics business का क्या होगा? The fundamental objective of business is to obtain profit through economic activity. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि बिजनेस के थ्रू प्रॉफिट कमाएं। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस। अगर आपको प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो आप उसको बिजनेस को बंद ही करना पड़ेगा। आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आप ऑटोमेटिक उस बिजनेस को बंद ही कर दोगे। तो इसलिए बोला है इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस। Profit is essential to continue the business. तो प्रॉफिट आपके बिजनेस का लाइफ ब्लड है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस चलाने का क्या मतलब। आपकी अगर बॉडी के अंदर जो आप लोग ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हो, अगर आपकी सांस से रुक गई तो बॉडी चलाने का क्या मतलब है। सेम कैसे अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस भी कभी कंटिन्यू नहीं हो सकता है। सो गुड्स आर सोल्ड एट अ हायर प्राइस देन इट्स कॉस्ट प्राइस, विच इज कॉल्ड प्रॉफिट। सो हम लोग प्रॉफिट किसको बोलते हैं? अगर आप कोई गुड्स को 100 रुपीज में परचेस करते हो और उससे 150 रुपीज में सेल करते हो तो जो 50 रुपीज का जो प्रॉफिट हुआ दैट इज नोन एज अ प्रॉफिट। जो आपको 50 रुपीज एक्स्ट्रा मिले हैं दैट इज नोन एज प्रॉफिट। तो हमारा ये देखिए पिक्चर में सेकंड लाइन में जस्ट एरो के बाद में स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट के बाद में अगर ये वाला पॉइंट देखोगे तो आपको श्योरली आपके आंसर के अंदर थोड़ा सा वेट आ जाएगा, आंसर आप लोग का थोड़ा भारी हो जाएगा, आंसर थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो सेकंड क्या है? प्रॉफिट इज द बैरोमीटर ऑफ बिजनेस। बैरोमीटर क्या होता है? मेजरमेंट। आप लोग अगर आपको बुखार आ जाए तो आप लोग थर्मामीटर से आप अपना बॉडी का प्रेशर मेजर करते हो। सेम कैसे अगर आपका बिजनेस का मेन पर्पस अर्निंग प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बिजनेस का बैरोमीटर है। जिस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट अच्छा हो रहा है इट मींस वो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। जिस बिजनेस में प्रॉफिट कम हो रहा है मतलब वो बिजनेस के अंदर अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा, बिजनेस सही से नहीं चल रहा है। ओके, सो प्रॉफिट इज द बैरोमीटर, प्रॉफिट इज द मेजरमेंट ऑफ एनी बिजनेस। तो यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। ओके, एंड इंक्रीज इन द प्रॉफिट ही हमारा सबसे सबसे पहला और सबसे आखिरी, पहला और आखिरी सब कुछ हमारा रीजन क्या है? इंक्रीज इन द प्रॉफिट। Okay, so moving towards the next characteristics, the second one is the exchange of goods and services. Yes students, अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो आपका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपका गुड्स एंड सर्विस के बीच में एक्सचेंज करने का होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो एक्सचेंज में क्या बोल रहा है? The goods and service takes place, the business is going to takes place when the goods and service are sold either by the manufacturing or by purchasing. अगर हम अपना बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस के अंदर या तो हम लोग खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगे गुड्स को और या फिर हम लोग उन गुड्स को परचेज करेंगे मार्केट से और उसे फिर सेल करेंगे। दो तरह का बिजनेस होता है, either you manufacture yourself and then sell the goods or either you purchase from some other person and adding some profit and then sell those goods to the market.
ओके, तो दोनों चीजें पॉसिबल आप लोग की। बिजनेस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस के अंदर मेन किस चीज का इन्वॉल्वमेंट होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस का इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, सो बिजनेस जहाँ पे गुड्स एंड सर्विस ही नहीं है तो उसको हम लोग बिजनेस कैसे बोलेंगे? तो बिजनेस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स इन अ फिजिकल फॉर्म एंड सर्विस इन इनविजिबल और इनटेंजिबल फॉर्म आर एक्सचेंज। तो आप लोग बिजनेस के अंदर क्या करते हो? या तो गुड्स दैट इज टेंजिबल फॉर्म्स के अंदर उनको एक्सचेंज करते हो, और या फिर आप अपनी सर्विसेज एज अ टीचर टीचिंग टू स्टूडेंट्स, प्रोवाइडिंग हिज सर्विस टू द स्टूडेंट्स इज नथिंग, इट्स आर इनटेंजिबल सर्विसेज। तो ये भी मेरे लिए क्या हो गया? ये भी मेरे लिए बिजनेस है, बट विच फॉर्म ऑफ बिजनेस? इन अ फॉर्म ऑफ इंटेंजिबल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस which may be the tangible form, the person who is having a card and purchasing the goods is in a form of tangible, and second person who is providing his service to the business in a form of any way, that is on a form of salary or for any fees, that is an intangible service, that is also our business. Okay, so moving towards the next characteristics, that is risk and uncertainty. Risk and uncertainty says that business involves the risk and element of uncertainty of returns, because I have already said you, for doing the business, that is for earning a profit, there should be some risk. If the risk is there, then profit will also be there. Okay, so business involves risk and element of uncertainty of returns. It involves man-made risks such as fire, accident, strike of employees, riot, robbery, theft, change in the preferences, decrease in the demand, change in the lifestyle of the public, taste, habit, competition, ये सब तरह की आप लोग की मेन मेड रिस्क हो सकती है। आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, डकैती हो सकती है, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज हो सकता है। पहले कोई चीज अच्छी लगती थी, अब दूसरी चीज अच्छी लगती है। लोगों के डिमांड के अंदर डिक्रीज आ जाएगा, पहले बहुत डिमांड करते थे बट कोई सिचुएशन के कारण उनकी डिमांड भी कम हो सकती है, लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। while there are also the natural risk, तो natural risk आपको पता है, सुनामी आ जाती है, earthquake आ जाती है, storm आ जाता है, और all this involved, all this risk adversely affects the income of the business। तो आप जो बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस चलाने के समय n number of things होती है, either it may be a man-made risk or the natural risk, कोई भी तरह का रिस्क हो, अगर जो बिजनेस इन रिस्क को हैंडल कर पाता है वो बिजनेस मार्केट में आराम से सेटल हो सकता है और प्रॉफिट भी कमा सकता है। तो मोर विल बी द रिस्क, more will be the chances of earning a profit, because ये risk and uncertainties opportunities लेकर आती है, और उस opportunities को जिसने पहले grab कर दिया उसको फायदा ही फायदा होगा। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे risk and uncertainty which are the two sides of the same coin always। तो danger, risk, uncertainty हर समय होगा ही होगा। Okay, so moving towards the next characteristics, that is your creation of utility। Okay, तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी बोलता है कि बिजनेस जो गुड्स बना रहा है वो गुड्स के अंदर कंज्यूमर के हिसाब से उस प्रोडक्ट के अंदर ऐसी चीजें डालता है, ऐसी चीज इन्वॉल्व करता है, ऐसा अट्रैक्टिव लुक देता है कि लोग नहीं खरीदने वाला जो उसको खरीद लेता है। सपोज करके मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मेरा फ्रूट्स का बिजनेस है, उस फ्रूट्स के बिजनेस को अगर मैं फ्रूट सेल करूंगा तो मुझे पब्लिक को अगर मैं कहूंगा कि इसका इतना प्राइस है पर केजी, पब्लिक देगी नहीं, पर मैं उसी फ्रूट्स को जूस में कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे आप लोग देखते हो ना मैंगो पल्प, टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है कि मैंगो की स्लाइस से बना हुआ मैंगो पल्प, और आप जब उसकी बोतल लेते हो तो वो मैंगो बनाने में कितना यूज किया होगा, सपोज करो ना सिर्फ एक मैंगो या 2 मैंगोज यूज किए होंगे। ओके, 2 मैंगोज की प्राइस आप लोग की तकरीबन अगर देखने जाओ तो 30 रुपीज है, फिर भी उसका मैंगो स्लाइस जो बना रहे हैं ना वो 50 रुपीज का है। तो बंदों को ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज से क्या है ना मेरी सेटिस्फेक्शन हो सकता है, ये चीज से मेरी भूख मिट सकती है। जो चीज आप लोगों की भूख को खत्म करता है, जो चीज आप लोग को सेटिस्फाई करता है उसको बोलते हैं यूटिलिटी। तो ये बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप लोग ये प्रोडक्ट्स जो कुछ भी बना रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं उसके अंदर यूटिलिटीज इन्वॉल्व कर रहे हैं। यूटिलाइजेशन इन्वॉल्व कर रहे हैं मतलब ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं कि कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाए बस प्रोडक्ट को देते ही। तो इसलिए बोला है टू प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर with the use of goods and service is called the creation of utility. Creation of utility takes place in 3 ways: form, place and time। तो ये देखिए स्टूडेंट्स,
फॉर्म, प्लेस एंड टाइम कोई भी तरह के फॉर्म में हो सकता है। अब मैं फॉर्म कैसे बोलूं स्टूडेंट्स, आपके जो रॉ मटेरियल्स है जिसको आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस उसको कोई दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसको आप लोग कंज्यूम कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल, व्हीट के जो ग्रेन्स होंगे वो आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करोगे, बट व्हीट को जब आप लोग एज एन आटे के फॉर्म में उसको आप लोग ग्राइंड कर दोगे तो उस फॉर्म से आप रोटी बनाकर यूज कर सकते हो। दैट इज नोन एज फॉर्म यूटिलिटी। उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दो। प्लेस यूटिलिटी, अगर आप लोग की जीवराज चाय है वो आसाम में बनती है और आपको यहाँ पर गुजरात में चाहिए, तो आसाम से आपको यहाँ पर वो गुड्स को चाय को आप लोग को जो टी के जो लीव्स है उनको ग्राइंड करके एक अच्छे पैकेट में सेल करेगा और आप यहाँ पे खरीद भी सकते हो। तो यहाँ पे लोगों को सेटिस्फाई किया जाता है। दैट इज नोन एज अ प्लेस यूटिलिटी। आसाम से आपके यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे देकर। एंड टाइम यूटिलिटी, जिस समय चाहिए उस समय वो गुड्स को हम लोग आराम से स्टोर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दैट इज नोन एज टाइम यूटिलिटी। ये भी आपके प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं है। देखा होगा ना आपने, उस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी होता है वहां पे लिखा होता है इट मे बी स्टोर्ड फॉर 3 days और 4 days और 5 days। तो आप लोग को ज्यादा जल्दी इसे यूज करने का रहेगा नहीं। जब यूज करना है तो आपको जो भी प्रोवाइडेड डेज है उनके अंदर यूज भी कर सकते हो, और जब अवेलेबल करवाना है तब आपको अवेलेबल भी हो जाएगा। तो दैट इज नोन एज टाइम यूटिलिटी। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज योर कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स, the characteristics of business is there that business should be on a continuous basis, regular and continuous business। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं आज बिजनेस करके आया और उसके बाद में 3-4 days तक उसका कोई भी बिजनेस ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप बिजनेस करो वो बिजनेस रेगुलरली एंड कंटिन्यूअली वे में होना चाहिए, बिकॉज बिजनेस इज एन ऑन गोइंग मॉनिटरी एक्टिविटी। कमाने के लिए एक्टिविटी की गई, जब आप रोज रोज कमाओगे नहीं तो बिजनेस आगे से आगे कैसे करते जाओगे। So for doing a business, you should do on a continuous basis so that आपका monetary income आप लोग को आता रहे। A businessman does the activity of purchase and sale continuously with the objective of profit। तो कोई भी तरह का businessman है वो purchase and sale activity कंटिन्यूअस वे में क्यों करता है, ताकि हर समय उसको प्रॉफिट होता रहे। तो कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस है आप लोगों का। तो ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस वे के अंदर बिजनेस होना जरूरी है। एनालाइज करना है, उसके हिसाब से नया प्रोडक्ट बनाना है, लोगों को देना है, लोगों को सेटिस्फाई करना है एंड लोगों की डिमांड के हिसाब से वापस कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाना। तो बिजनेस कंटिन्यू होता रहता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो डीलिंग हो रही है हमेशा कंटिन्यूअस वे में ही डीलिंग करने के लिए होता है, ताकि ये भी सेटिस्फाई रहे और आपके कस्टमर्स भी सेटिस्फाई रहे। So moving towards the next characteristics is the requirement of money. Yes, for doing any business, money is the main thing। जैसे मैंने कहा था, फाइनेंस बिजनेस का लाइफ ब्लड है। अगर आपका बिजनेस में फाइनेंस ही नहीं होगा, रुपीज ही नहीं होगा, तो बिजनेस कैसे करोगे। तो मनी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द बिजनेस। मनी इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर फिनिश्ड गुड्स from raw materials in the factory and also by the trader to purchase the goods। So money आपका एक one of the important thing है जिसके कारण आपका business possible हो सकता है। ओके, तो आप देख सकते हो ये मनी ही मनी है जिसके कारण आपका business proper चल सकता है। ओके, एंड द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस, आपका बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि ये आपका विद द मोटिव ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट के नीचे ही किया जाता है। जिसका मोटिव अर्निंग प्रॉफिट नहीं है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ना होकर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। पर जिसका आपका मेन ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट अर्निंग का पर्पस है, उसको ही हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो ये भी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस है। तो स्टूडेंट, दिस इज हाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स टॉपिक इज डन। ओके, सो वी विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो विद द रिमेनिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, दिस चैप्टर विल give you a much knowledge related to this everything। If you like this channel, students, do share and subscribe my channel for the same। We will meet in the next video with the more topics of this। Okay students, till then, thank you and have a nice day।